Hello, good evening, everyone, my dear friends. So once again, I welcome all of you in today's current affairs. Okay, so today we are into 6th of December 2025. Okay, and in today's current affairs, I have got some good articles for you from the Hindu newspaper, which are actually very good and meaningful, and you will be able to understand so many good concepts related to Indian economy in these articles. Okay, so the first article which I will be discussing will be related to Health Security, National Security Bill 2025, and it is in light of the Pan Masala cess, okay, which I have already discussed 3 days ago that government is planning to introduce such a bill. Now government has introduced Pan Masala cess bill, okay. This will be basically on the manufacturers and machinery of Pan Masala, okay. So also I will discuss Climate Change Performance Index, and I will discuss it in light of coal, how we are over dependent on coal and how we have to reduce the dependence on coal emission, okay. And here is a case study from Chile, okay. Chile is a good case study how Chile has phased out coal based industry and coal based energy resources, okay. Then I will discuss monetary policy committee decisions, which recently it has decided that repo rate will be reduced. It has already reduced repo rate by 25 basis points, and the current repo rate stands at 5.25, okay, percent. Clear? Now I will discuss what is repo rate, along with I will discuss what is liquidity adjustment facility, marginal standing facility, standing deposit facility. All are monetary policy tools of RBI, okay. Then I will also discuss digital constitutionalism. This is in light of the recent application, Sanchar Sathi application, then digital personal data protection rules, and then I will discuss something related to India-Russia, which I have already discussed yesterday. I will continue few things which we have agreed upon. Both the leaders of the countries, Russian President and Indian Prime Minister, recently have concluded some agreements. Okay, so I will discuss briefly that also. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. The first one. Lok Sabha passes bill to levy special cess on pan masala. ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया है. Earlier, I have told you what is cess. Cess is basically a special tax on tax. Okay, cess क्या होता है? Cess is tax on tax for a special purpose. For a special purpose. Like यहाँ पे बताया गया है कि हम क्या करेंगे, पान मसाला सेस लगा रहे हैं दो पर्पसेस के लिए, एक हेल्थ सिक्योरिटी के लिए और एक हम नेशनल सिक्योरिटी के लिए लगाएंगे. ठीक है, इसके लिए नेशनल सिक्योरिटी के लिए, तो पर्पस मेंशन्ड है. ठीक है, अच्छा, ये दोनों चीजें जो हैं, और ये क्या कहा गया है कि ये जो पान मसाला सेस है, ये जो पान मसाला सेस है, वी विल बी शेयरिंग दिस सेस, पान मसाला सेस विल बी शेयर्ड विद स्टेट्स, टू बी शेयर्ड विद स्टेट्स. काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए फाइनेंस मिनिस्टर से कि आपने क्यों ये पान मसाला सेस लाने की आपको क्या जरूरत पड़ी, ये तो पान मसाला मैन्युफैक्चरर्स को लॉस करेगा, वर्कर्स को लॉस करेगा. तो देन फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या रिस्पॉन्स दिया कि ऐसा कोई भी मसला नहीं है, ये किसी को भी लॉस नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी देयर वाज वन सेस कॉल्ड एज जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस. अब मैं कम से कम 5वीं दफा ये बता रहा हूं कि जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस एक स्पेशल सेस था जो टोबैको प्रोडक्ट्स, लग्जरी प्रोडक्ट्स, कार्स, ऑटोमोबाइल्स पे था. किस चीज के लिए था ये इस चीज के लिए था कि कल को स्टेट्स को अगर लॉस फेस होना हुआ बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, तो हम स्टेट्स को क्या करेंगे, कंपनसेशन देंगे, और वो इसी जीएसटी कंपनसेशन सेस से जो फंड आएगा, जीएसटी कंपनसेशन फंड, उसी से हम स्टेट्स को कंपनसेट करेंगे. अब वो ये जीएसटी कंपनसेशन सेस जो है, आफ्टर द रिफॉर्म्स जीएसटी 2.0 2025, अब ये जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस जो है ये खत्म होने वाला है. ठीक है, इट इज टू बी फेज्ड आउट. इसकी जगह अब कह रहे हैं कि हमने एक एडिशनल ड्यूटी लगा दिया सेस, जिसका नाम रख लिया हमने हेल्थ एंड सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस. इसका मतलब टोबैको प्रोडक्ट सस्ते ना हो जाए, टोबैको मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी प्रोडक्शन जो है वो सस्ता ना हो जाए, इसलिए भी हमने ये सेस लगाया. और जीएसटी कंपनसेशन सेस खत्म हो जाएगा तो हम स्टेट्स को इस सेस में से जो है कुछ पार्ट स्टेट्स के साथ शेयर करेंगे. दिस इज व्हाट हैज बीन रिटन इन द आर्टिकल. ठीक है, ये सारी चीजें आर्टिकल में बताई गई हैं. नेशनल हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी बिल, ओके. और ये कहा गया है कि पान मसाला आज भी 40% मैक्सिमम टैक्स रेट से टैक्सेशन किया जाएगा, और इससे कोई भी लॉस नहीं होगा, कोई नया एडिशनल पैसा नहीं देना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो पहले से ही
जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस था वो खत्म होने वाला है, ठीक है। और निर्मला सीतारमन ने क्या कहा कि टेंटेटिवली जो ये सेस का रेट है वो कितना होगा, जो टोटल रेवेन्यू का जो परसेंटेज है वो 6.1% ही रहेगा। जबकि अगर आप देखोगे तो 2010 से 2014 तक जितने भी ये टैक्सेस थे 2010-2014 से तक ये 7% ऑफ टोटल रेवेन्यू रहा है, 7% ऑफ टोटल रेवेन्यू। तो आज की डेट में ये उससे भी कम रहने वाला है, कितना, 6.1% करंट फिस्कल में रहने वाला है ऑफ टोटल रेवेन्यू, नॉट ऑफ द प्रॉफिट और एनीथिंग, इट इज ऑफ टोटल रेवेन्यू। कि सेस के फॉर्म में जो आप गवर्नमेंट को पे करोगे टोटल रेवेन्यू का 6.1% ही होगा, जबकि 2010 से 14 तक आप देखोगे ये करीब करीब 7% था टोटल रेवेन्यू का, ठीक है। तो इसका मतलब सेस बढ़ने से कोई भी एक्स्ट्रा आपको पैसा गवर्नमेंट को नहीं देना पड़ रहा, ठीक है। ओके, ये पहला आर्टिकल था। द सेकेंड आर्टिकल इज अबाउट, इसके बाद जो दूसरा आर्टिकल मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है चिली से हम क्या लेसन सीख सकते हैं और कोल को कैसे हम कम कर सकते हैं, कोल का कंजम्पशन कैसे फेज आउट कर सकते हैं, ठीक है। और ये किस लाइट में हम बात करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टॉक इन लाइट ऑफ रिसेंटली रिलीज्ड क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या है। आई विल टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। ये इंडेक्स बेसिकली जो मेजरली जो ग्लोबली ग्रीन हाउस एमिटिंग कंट्रीज हैं ये उनको स्टडी करता है, ठीक है। दिस इंडेक्स स्टडीज दोज कंट्रीज विच आर मेजर इमिटर्स ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज। ओके, 63 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन, ये असेसमेंट करता है किसका, 63 कंट्रीज जो मेजर इमिटर्स मानी जाती हैं प्लस यूरोपियन यूनियन। इस पे इंडिया का रैंक 2024 में इट वाज 10 और 2025 में इट हैज बिकेम 23, मींस 13 प्लेसेस हम इस रैंक के ऊपर अभी क्या किए हैं, ड्रॉप किया है, ठीक है। अब ये हम जो इस पे ड्रॉप किया है रैंक पे, तो किस वजह से हम इस पे ड्रॉप किया और हमारा जो रैंक है वो इतना ज्यादा नीचे क्यों आया, उसके लिए हमको देखना पड़ेगा इंडिकेटर्स क्या क्या है। उसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, इंडिकेटर्स। ये 4 इंडिकेटर्स पे कंट्रीज को क्या करता है, रैंक करता है, ठीक है। सबसे पहले एक कंट्री में कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है, ठीक है। द फर्स्ट थिंग इट टॉक्स अबाउट इज ग्रीन हाउस गैस एमिशन इन अ पर्टिकुलर कंट्री। ग्रीन हाउस गैस एमिशन, दिस इज पॉइंट नंबर 1। कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है एक कंट्री में, ये डिस्कस किया जाता है इसमें, इसके ऊपर चेक किया जाता है, ठीक है। दूसरा, अच्छा, इसमें अगर हम देखेंगे तो इंडिया का एक अच्छा रेटिंग है, इंडिया का हैज ए हाई रेटिंग। क्यों? क्योंकि हमारा पॉपुलेशन इतना ज्यादा है तो पर कैपिटा जो इमिशन है वो कम हो जाता है। पर कैपिटा इमिशन जो है हमारा वो ज्यादा नहीं है, पर कैपिटा, पर इंडिविजुअल या पर पर्सन इमिशन इज वेरी लो इन इंडिया। इसकी वजह से हमारा जीएचजी एमिशन में तो रेटिंग है अच्छा, ठीक है। दूसरा है एनर्जी यूज। एनर्जी यूज पे हमारा मॉडरेट रेटिंग है। क्या है? मॉडरेट रेटिंग। क्यों? क्योंकि एनर्जी यूज में हम आज भी बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंड है एनर्जी के लिए, लेकिन हम रिसेंटली जो है कई सारी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट की कई सारी जो स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरह शिफ्ट कर रहे हैं, तो उससे हमें जो है थोड़ा सा एडवांटेज होगा आगे, ठीक है। और क्लाइमेट पॉलिसी पे भी हमारा जो है वो मीडियम रेटिंग है, क्योंकि क्लाइमेट पॉलिसी में हम पॉलिसी तो बहुत अच्छी बना रहे हैं लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हम ग्रीन हाउस गैस को एमिशन को रिडक्शन नहीं कर रहे। तो क्लाइमेट पॉलिसी पे भी हमारी कंट्री का क्या है? मॉडरेट रेटिंग है हमारी। क्या है? इस पे भी मॉडरेट रेटिंग है। लेकिन लो रेटिंग्स हमारी सबसे ज्यादा कहां पे आ गई? रिन्यूएबल एनर्जी पे। ये चौथा इसका इंडिकेटर है। क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी। और रिन्यूएबल एनर्जी वाले इंडिकेटर पे हमारी रेटिंग काफी लो हो गई, ठीक है। अब ये इंडिकेटर्स ध्यान रखने हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, और फिर पूछ लेगा कि इन 4 इंडिकेटर्स में से कौन सा इंडिकेटर नहीं है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा ये भी पूछ सकता है कि ये वाला इंडेक्स जो है पब्लिश कौन करता है, ठीक है।
तो आपको याद रखना है कि ये वाला इंडेक्स जो है ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इकट्ठा होके पब्लिश करती है। एक है जर्मन वॉच इज ए क्लाइमेट बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। दिस इज पब्लिश्ड बाय जर्मन वॉच प्लस न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट प्लस क्लाइमेट एक्शन फोरम। ये 3 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पब्लिश करती हैं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो ये चीजें याद रखनी है प्रीलिम्स के लिए। अब इंडिया का परफॉर्मेंस मैंने आपको बताया, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में सबसे लो स्कोर आया है इंडिया का स्कोर कैसा आया? लो स्कोर। इसकी वजह से हमारा रैंकिंग ड्रॉप हो गया टू 23। ठीक है, यहां पे लो क्यों आया? क्योंकि हमारा मेजर डिपेंडेंस किस पे है? आज भी मेजर डिपेंडेंस है कोल पे। ठीक है, तो इस आर्टिकल में बताया गया कि ये कोल को हम कैसे फेज आउट करेंगे, हाउ टू फेज आउट, कैसे फेज आउट करना है आपको ये कोल का यूज अपनी कंट्री में। दिस इज व्हाट हैज बीन हाईलाइटेड। और इसमें केस स्टडी जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइमेट एनवायरमेंट के पर्पज से केस स्टडी किसका दिया है? चिली का। हालांकि चिली का क्लाइमेट कोल पे डिपेंडेंस उतना ज्यादा था भी नहीं जितना हमारा इंडिया का है, लेकिन फिर भी कहा गया कि वहां पे कैसे एग्रेसिव पॉलिसी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की। ठीक है, तो ये आर्टिकल में पूरी सारी चीजें जो है डिटेल में बताई गई हैं। ठीक है, चलो लेट मी डिस्कस वन बाय वन। हाँ, सबसे पहले क्या बताया गया है कि ये क्लाइमेट चेंज जो है ये ब्राजील में अभी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 हुआ, COP30 जो ब्राजील में हुआ, उसमें बताया गया कि इंडिया का रैंक जो है 23rd पे ड्रॉप हुआ। 23rd रैंक आ गया किसमें? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स पे। अब हमको जरूरत क्या है? हमको कोल को फेज आउट करना है। ठीक है, इसलिए कोल कंड्रम इज द वर्स्ट काइंड ऑफ प्रॉब्लम विच इंडिया इज फेसिंग। ठीक है, और इसको फेज आउट करना भी इजी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कई सारी जो एनर्जी जो डिपेंड ही करते हैं कोल बेस पे, कुकिंग भी कोल बेस फ्यूल से करते हैं, बाकी सारी चीजें, हीटिंग, कोल्ड एरियाज में कोल बेस हीटर्स हैं उनके पास। अगर कोल को फेज आउट करेंगे, सबसे पहले उनकी खुद की लाइफ चली जाएगी। अच्छा, कई सारे लोग कोल बेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनका लाइवलीहुड का भी लॉस हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसलिए हमने चिली का एक्सपीरियंस यूज करके हमको इसको टैकल करना है। ठीक है, कंपैरिजन क्या किया है कि कोल जो है वो हमारे कंट्री में, इंडिया में सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऐसा ही चिली में भी था। ठीक है, और इंडिया का क्लीन एनर्जी कैपेसिटी हालांकि 2021 से लेके 2025 तक इंडिया का क्लीन एनर्जी कैपेसिटी जो है वो डबल हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा कोल के ऊपर आज भी क्या है? डिपेंडेंस है। ठीक है, कोल हमारा आज भी 75% हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कहां से हो रही है? कोल से हो रही है। ठीक है, 75% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हमारी आज भी कहां है? कोल से हो रही है। और कंसिस्टेंटली इंडिया आज भी कंपैरेटिवली इंडिया आज भी कोल जनरेशन में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बरकस अगर आप देखोगे, चिली में एक टाइम में 2016-17 में अगर आप बात करोगे, चिली में मैं यहाँ पे चिली का डेटा लिख रहा हूं जो दिया हुआ आर्टिकल में, कि अराउंड 44% कोल का डिपेंडेंस था। ठीक है, और अगर आप देखोगे लेटर ऑन विद इन स्पैन ऑफ 8 ईयर्स, ये 2016 में 44% था, और 2024 में अगर आप देखोगे चिली में कोल का डिपेंडेंस कितना हो गया? जस्ट 17.5%। ओके, मोर देन हाफ जो है हमारा डिपेंडेंस चिली में रिडक्शन हो गया कोल के ऊपर। अब इसका क्या रीजन है? सबसे पहले 1 टन कोल की खपत पे $5 का टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया। किसने? चिली ने। ठीक है, सो उसने क्या कर दिया? सबसे पहले टैक्स इंट्रोड्यूस करा किसके ऊपर? टैक्स ऑन अनसस्टेनेबल फ्यूल या डर्टी फ्यूल। ठीक है, हमारी कंट्री में भी क्लीन एनर्जी सेस एक टाइम पे था, आज की डेट में भी है कुछ एरियाज में, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट नहीं है। यहां पे कितना स्ट्रिंजेंट प्रोविजन है
कि आप पर टन खपत अगर कोल की करोगे तो $5 आपको पे करना पड़ेगा पर टन ऑफ कोल, ठीक है। तो बड़ी बड़ी एनर्जी, बड़ी बड़ी कंपनीज तो थाउजेंड्स ऑफ टन कोल क्या करती हैं, कंज्यूम करती हैं। अब उनको $5 पर टन के हिसाब से देना पड़े तो $5,000, $10,000, $100,000 पे करना पड़ेगा एज टैक्स, ठीक है। एक तो वो बंद कर दिया उन्होंने, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, मेजरली इन्वेस्टमेंट किसमें किया, अपने विंड और सोलर एनर्जी में। अब इंडिया में विंड एनर्जी का बहुत ज्यादा स्कोप है नहीं, बहुत ज्यादा एरियाज में, लेकिन सोलर एनर्जी का ह्यूज स्कोप है हमारी कंट्री में, जिसमें हम अभी इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। और चिली ने सबसे ज्यादा क्या किया, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को बिल्डअप किया, खूब सारा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी हार्नेस करके उसको स्टोरेज करके, और उन्होंने क्या कहा कि हम पूरी तरह से 2040 तक कोल को फेज आउट करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे लिए, इंडिया के लिए, अगर 2040 तक, वैसे तो 2040 तक हमारे लिए ये बहुत ही ज्यादा पॉसिबल नहीं है, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस कि हम 2040 तक, लेकिन हमारा जो एनर्जी इंस्टीट्यूशन है, द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ये कहता है कि बाय 2050 हम फेज आउट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमारी गवर्नमेंट को कुछ काफी सॉलिड स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ठीक है, काफी सॉलिड स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अब वो कौन कौन से स्टेप्स बताए गए हैं, सबसे पहले उनको क्या करना है कि हमको रिन्यूएबल सोर्सेज पे काम करना है, और कोल से बाहर निकलने के लिए हमको रिन्यूएबल सोर्सेज पे सबसे ज्यादा क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशन और मार्केट को रिफॉर्म करना है, और कई सारे हमको ऐसे मेजर्स लेने, ऐसे रेगुलेशंस बनाने हैं, जैसे कार्बन प्राइसिंग करना पड़ेगा, रिमूवल ऑफ कोल बेस्ड सब्सिडीज, कोल की सब्सिडीज जितनी है वो हटानी पड़ेंगी, क्लीन डिस्पैच रूल्स को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, और कई सारे जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या कहा कि हमको जो है रोबस्ट सपोर्ट देना पड़ेगा वर्कर्स को, जो कोल के वर्कर्स हैं उनको अगर उनका लाइवलीहुड लॉस हो जाएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, उनको रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा दूसरे सेक्टर्स में, उनको ट्रेनिंग और स्किल करना पड़ेगा, और उसके बाद उनको जो है दूसरे फेज में ट्रांजिशन करना पड़ेगा। और हमको कुछ डेडिकेटेड फंड्स चाहिए, जैसे ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन इंडिया फंड, हम एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बैठी थी, उसने कहा था ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन फंड के जैसा एक फंड एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, जिसमें हम इतना फंड रख सके कि हम लाइवलीहुड्स को कंपनसेट कर पाए जो लॉस होंगे ड्यू टू फेजिंग आउट ऑफ कोल। तो ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है एनवायरमेंटल पर्पज से, एनर्जी सिक्योरिटी के पर्पज से, और एक केस स्टडी भी इसमें है चिली का, ठीक है। नेक्स्ट, चीपर लोन्स आर लाइकली एज रेपो रेट्स कट बाय 25 बेसिस पॉइंट्स। पहली चीज आप यहां पे समझो, 1 परसेंटेज पॉइंट इज इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट्स। पहला कॉन्सेप्ट यह है, अगर 25 बेसिस पॉइंट से कट किया है तो इसका मतलब 0.25 परसेंटेज पॉइंट, मींस 0.25 परसेंटेज पॉइंट से कट किया गया है रेपो रेट को। रेपो रेट पहले क्या था, 5.5%, और अब कितना हो गया है, 5.25%। अब रेपो रेट कट करने से हमें फायदा क्या होगा, और यहां पे आप देख रहे हो ये डिसीजन लिया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने, और ये कट क्या किया है, रेपो रेट। रेपो रेट कट करने की वजह से मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट भी कट होगा। तो जब तक ना आपको ये कॉन्सेप्ट सारे पता होंगे तब तक आप इन चीजों को डील नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले माय प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड रेपो rate. The first concept which I want you people to understand is repo rate. Okay? अब मुझे बताओ रेपो रेट क्या होता है, व्हाट इज रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब होता है कि आप जब, पहले मैं आपको एक इलस्ट्रेशन से समझाऊंगा अगले पेज पे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। पहले इसको ब्रेक डाउन करो, REPO, ओके, repurchase. The word REPO, it stands for repurchase, offer or operation or option.
और ऑप्शन। ठीक है, ये एक टूल है आरबीआई के पास। इस टूल के थ्रू आरबीआई क्या करता है, इकोनॉमी में चेक करता है लिक्विडिटी अगर ज्यादा हो गई है, लिक्विडिटी मींस मनी सप्लाई, ज्यादा हो गई है तो कम कैसे करें, कम हो गई है तो ज्यादा कैसे करें। ऐसी फैसिलिटी को क्या कहते हैं आप, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। क्या कहते हैं आप, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इट इज अ टूल विद आरबीआई थ्रू विच it increases or decreases money supply in the economy or liquidity in the economy by carrying out a repo transaction or a reverse repo transaction or a reverse repo transaction, reverse repo transaction। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको रेपो ट्रांजैक्शन के बारे में बताता हूं। ठीक है, रेपो ट्रांजैक्शन के केस में कि होता क्या है, देखो सपोज आई विल गिव यू एन इलस्ट्रेशन। हाँ, सपोज दिस इज आरबीआई एंड दिस इज कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक। आरबीआई क्या कहेगा कॉमर्शियल बैंक्स को कि आप हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखो, कीप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विद अस। आरबीआई विल गिव मनी टू बैंक्स, आरबीआई विल गिव रुपी टू बैंक्स। अब बैंक्स के पास क्या आ गया, रुपी आ गया, मींस बैंक के पास क्या आ गया, लिक्विडिटी आ गया। अब ये लिक्विडिटी से क्या होगा, बैंक क्या करेगा, लेंडिंग करेगा। लेंडिंग से मार्केट में क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। मनी सप्लाई बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, उसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, ये सारा साइकिल सेट इन हो जाएगा बिकॉज ऑफ इन्फ्यूजिंग लिक्विडिटी इनटू। सो रेपो ट्रांजैक्शन इज कंडक्टेड बाय आरबीआई टू इंक्रीज और डिक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। अब जब रेपो रेट क्या कर दिया, कम कर दिया, रेपो रेट क्या कर दिया, कम कर दिया, तो डेफिनेटली कॉमर्शियल बैंक्स चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा पैसा इनके पास आए। अगर आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया, कॉमर्शियल बैंक भी क्या करेंगे, अपना लेंडिंग रेट कम कर देंगे। क्या कर देंगे, लेंडिंग रेट कम कर देंगे। ठीक है, जैसे ही लेंडिंग रेट कम कर देंगे तो लोग क्या करेंगे, लोन्स लेना ज्यादा शुरू करेंगे। अच्छा, कॉमर्शियल बैंक एक और काम करेगा, अपना सेविंग रेट जो है वो क्या कर देगा, वो भी कम कर देगा। तो लोग सेविंग की जगह क्या कर देंगे, एक्सपेंडिचर शुरू कर देंगे, क्योंकि अगर बैंक सेविंग पे रेट कम दे रहा है तो वाई टू सेव, बेटर टू स्पेंड मनी। ठीक है, तो ये सारी चीजों से होगा क्या, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ता चला जाएगा। उसका एक इंपैक्ट ये भी होगा कि टू मच मनी इन द इकोनॉमी लीड्स टू इन्फ्लेशन। ग्रोथ इज ऑलवेज कपल्ड विद इन्फ्लेशन। तो अगर इन्फ्लेशन हो जाएगा इकोनॉमी में, वो हमारे लिए अच्छी चीज है, बिकॉज मॉडरेट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज ऑलवेज गुड फॉर द इकोनॉमी। अभी हमारा अगर आप रिटेल इन्फ्लेशन देखोगे, वो बिलो द स्पेसिफाइड टारगेट ऑफ 2%। सेफ लिमिट क्या है हमारी इन्फ्लेशन की, 2 to 6% एज रिकमेंडेड बाय उर्जित पटेल कमेटी, और 4 ± 2%। तो इस समय इस 2% से भी नीचे आ चुका है। ठीक है, 1.2% के आसपास है। तो थोड़ा सा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ पुश होगा, क्योंकि हमें अप्रीहेंशन है कि यूएस ट्रेड टैरिफ जो है वो सितंबर में इंप्लीमेंट हुए, तो आगे हमारा ग्रोथ डिक्लाइन हो सकता है। तो हम पहले ही ऐसे स्टेप लें कि उसका इंपैक्ट जो है, कि आरबीआई ने इस वाली मीटिंग में कहा भी, मॉनेटरी पॉलिसी ने, कि हमारे लिए वरीसम बहुत ज्यादा वो सिचुएशन नहीं है कि अगर हमारा जो है ट्रंप ने इतने हैवी टैरिफ्स लगा दिए। ठीक है, तो इस सब चीजों को समझाने से एक चीज पता चला कि रेपो रेट क्या होता है, रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट आरबीआई लेंड करता है किसको, कमर्शियल बैंक्स को। लेकिन रेपो इसको इसलिए बोलते हैं कि एक टाइम पे फिर ये ट्रांजैक्शन को आरबीआई वापस करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक्स को वापस करेगा और मनी वापस ले लेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रीपर्चेज ऑप्स। जब मनी सप्लाई, जब लिक्विडिटी स्टेबलाइज हो जाएगी, तो आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस कर देगा बैंक्स को, और बैंक से लिक्विडिटी वापस, मनी वापस ले लेगा। ठीक है, और जिस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई लेंड करता है कमर्शियल बैंक्स को, उस इंटरेस्ट रेट को क्या कहते हैं, रेपो रेट। समझ में आ गया। तो ट्रांजैक्शन में क्या होता है, आरबीआई लेता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किससे, कमर्शियल बैंक से। एक तो ये टर्म इसमें दी गई है। ठीक है, दूसरी टर्म ये दी गई है कि क्योंकि रेपो रेट इस समय 5.25 हो गया, तो ये भी बताया गया कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या हो जाएगा, फिर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट हो जाएगा 5.5%। क्योंकि रूल ये है कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट इज इक्वल टू रेपो रेट प्लस 0.25 परसेंटेज पॉइंट्स।
ठीक है, तो यही आर्टिकल में बताया गया है कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जो है वो कितना हो जाएगा 5.5%। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल मींस शॉर्ट टर्म, ओवरनाइट बेसिस पे, और स्टैंडिंग फैसिलिटी मींस आरबीआई पैसा देता है बैंक्स को ओवरनाइट बेसिस पे, लेंड करता है। ठीक है, सो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी अंडर दिस banks can borrow from RBI for overnight basis at an interest rate which is 0.25 percentage point more than the repo rate. So this is called marginal standing facility rate. तो repo rate चेंज होने की, repo rate कम हुआ, इसकी वजह से मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जो कि 5.75 था अब 5.5 हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, ये दोनों टर्म्स आपको समझ में आ गई। अब करंट अफेयर्स की क्लास में इतना तो काफी है, लेकिन बेसिक इकोनॉमिक्स की जब क्लास होती है बहुत ही डिटेल में समझाया जाता है। ठीक है, कि रेपो रेट क्या है। अच्छा, ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी यहां पे टर्म यूज की गई है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है, अब इसमें एक और चीज टर्म यूज की है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का रूल क्या है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का रेट कितना होता है, इट इज इक्वल टू रेपो रेट माइनस 0.25 परसेंटेज पॉइंट्स। ओके, तो अगर रेपो रेट हो गया हमारा कितना 5.25, तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट कितना हो जाएगा, ओनली 5%। नाउ व्हाट इज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का मतलब होता है, ये एक स्पेशल टूल है, मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, जिसमें आरबीआई बोलता है बैंक्स को कि अगर आपके पास एक्सेस स्टैंडिंग डिपॉजिट्स है, एक्सेस डिपॉजिट्स है, आप वो हमारे पास पार्क कर सकते हो, आप वो हमारे पास रख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको 5% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात को? सो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इज द इंटरेस्ट रेट विच इज पेड बाय बैंक्स to RBI for parking its excess funds, excess standing deposits with RBI for a short period or long period. Get the point? So ये तीनों चारों टर्म्स जो हैं ये आपकी इसमें इस वाले आर्टिकल में है, तो इससे आपको अब समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, सो एक और चीज इसमें आगे ये बताई है कि आरबीआई ने एक और लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए आरबीआई ने एक और स्टेप लिया है। कि आरबीआई क्या कहता है, एक और स्टेप जो लिया है आरबीआई ने, वो ये कहा है कि हम ओपन मार्केट ऑपरेशन भी कंडक्ट करने वाले हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो नई टर्म जो आपको इसमें अंडरस्टैंड करनी है, दैट इज ओएमओ। वो क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। द नेक्स्ट टर्म यहां पे लिखा दिया हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन फ्राइडे अनाउंस्ड टू कंडक्ट ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब कितना? 1 लाख करोड़। ओके, 1 लाख करोड़ मींस 2 स्टेजेस में किया जाएगा, पहले 50,000 करोड़ और फिर और 50,000 करोड़। 1 लाख करोड़ आरबीआई क्या करना चाहता है, फंड्स जो है वो इन्फ्यूज करना चाहता है इकोनॉमी में थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन भी मैं आपको समझाऊंगा किससे, थ्रू ए इलस्ट्रेशन। वो इलस्ट्रेशन क्या है, इसमें अगेन आरबीआई क्या करता है, ओपन मार्केट्स में मींस नॉट टू बैंक्स, any financial institutions or other economic entities, RBI will either buy or sell, government securities। ठीक है, आरबीआई क्या करेगा, either buy or sell government securities in the open market। और ओपन मार्केट से क्या करेगा, या तो फंड्स रिसीव करेगा या तो ओपन मार्केट में फंड वापस देगा। सो मैं कह रहा था कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में फिर आरबीआई क्या करेगा, अगर बाय करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करता है, तो मनी जो है वो ओपन मार्केट एंटिटीज को, बैंक्स को या फाइनेंशियल कंपनीज को वापस देगा। और अगर सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मींस या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहां से यहां फ्लो करेगी, इसका मतलब फंड्स यहां से यहां फ्लो करेंगे, तो आरबीआई के पास फंड्स वापस लिक्विडिटी तक आउट हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब थ्रू द टूल ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई अगेन वांट्स टू इंक्रीज और डिक्रीज मनी सप्लाई। ठीक है, इंक्रीज कब करेगा मनी सप्लाई, जब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या करेगा, बाय या सेल। तो मनी सप्लाई इंक्रीज तब होगी जब ये बाय करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। व्हेन आरबीआई विल बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इट विल इन्फ्यूज मनी इन द इकोनॉमी, इट विल लीड टू इन्फ्यूजन ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मींस अवेलेबिलिटी ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। हाँ, एंड अगर आरबीआई क्या करेगा, मनी सप्लाई डिक्रीज करना होगा, तो इट विल सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल होने से क्या होगा,
इट विल रिड्यूस मनी सप्लाई फ्रॉम द इकोनॉमी, ठीक है। लेकिन अभी आरबीआई ने क्या प्लान किया है कि हम जो है 1 लाख करोड़ का गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करेंगे या सेल करेंगे? हम बाय करेंगे। आरबीआई क्या करेगा? बाय करेगा, और 1 लाख करोड़ विल बी इन्फ्यूज्ड इन द इकोनॉमी। इन्फ्यूजन इन इकोनॉमी, इतनी लिक्विडिटी इकोनॉमी में क्या होगी? इन्फ्यूजन होगी। 1 लाख करोड़ इकोनॉमी लिक्विडिटी विल बी इन्फ्यूज इन द इकोनॉमी, ठीक है। इसके लिए आरबीआई, अब यहां से पता चलता है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो भी एक टूल है टू इंक्रीज और डिक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। और ऐसे टूल्स जो मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए यूज होते हैं, उनको क्या कहते हो आप? दे आर कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, बाय because they either increase money supply in the economy or they reduce money supply, they influence the quantity of money supply in the economy। तो यही चीज आरबीआई ने इसमें आर्टिकल में कही है कि, और आरबीआई ने यहाँ पे ये भी कहा है कि हम जो है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू क्या करेंगे, ये डिसीजंस को करेक्ट करके हम जो है मेक श्योर करेंगे कि अगर यूएस टैरिफ वॉर्स का हमारे ऊपर कोई ज्यादा इंपैक्ट आने वाला भी हो तो हम जो है उसको वार्ड ऑफ कर सके थ्रू करेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन। इसलिए tariff impact is minimal. This is the statement of RBI. This is the statement of RBI that tariff impact is minimal. I hope it is clear to all of you. Okay. So अब next article जो है, it talks about basically digital constitutionalism. It talks about digital constitutionalism. यहाँ पे सिर्फ दो चीजें याद रखनी है आपको कि डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, कि डिजिटल एरा के अंदर भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है वो एक्सटेंड हो, हमारा लिबर्टी, डिग्निटी, इक्वालिटी, ये सारी चीजें जो है वो प्रोटेक्ट हो इन डिजिटल स्पेस। डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मींस प्रोटेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इन डिजिटल स्पेस। प्रोटेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इन डिजिटल स्पेस। ये इन लाइट ऑफ व्हाट? इन लाइट ऑफ रिसेंट गवर्नमेंट डायरेक्टिव, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा था मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स को कि प्री इंस्टॉल करके रखो कौन सा एप्लीकेशन? संचार साथी है सारे डिवाइसेस में। अब वो ऑर्डर वापस भी ले लिया गवर्नमेंट ने, लेकिन अब इसमें ये बताया गया है कि हमारा जो है एक क्लिक के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन डिफरेंट किस्म के लोगों के पास चली जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम अलो करते हैं और हमारा डॉक्यूमेंट डेटा जो है वो सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर है। हमने फिर उसकी प्रोटेक्शन के लिए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स, ओके, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स भी नोटिफाई किए। 2023 में एक्ट पास किया, 2025 में रूल्स भी नोटिफाई किए। लेकिन इसमें भी कुछ लोगों ने कहा कि गवर्नमेंट के पास एक्सेसिव ऑटोनॉमी है कि वो कभी भी इंडिविजुअल का डेटा यूज कर सकती है, ठीक है। और बहुत सारे लीनियंट प्रोविजंस है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसी के लिए कि अगर कल को हमारा डेटा ब्रीच, पर्सनल डेटा जो है वो कहीं पे भी ब्रीच हो जाता है, ठीक है। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए लोगों के अंदर डिजिटल लिटरेसी हो, डिजिटल एरा के लिए लोग जो है वो पढ़े लिखे हो, और डिजिटल जितना भी स्पेस है उसके बारे में लोगों को नॉलेज हो। प्लीज गो थ्रू दिस आर्टिकल, इट इज वंडरफुल आर्टिकल। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल जो है that talks about India-Russia friendship which remains steady like pole star। ध्रुव तारा जैसे स्टेबल है उसी तरह इंडिया का रशिया की फ्रेंडशिप जो है वो स्टेबल है, ठीक है। दो एग्रीमेंट्स मेनली अभी साइन हुए हैं। वो पहला है मोबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड इंडियन वर्कर्स। इंडिया का स्किल्ड और सेमी स्किल्ड इंडियन वर्कर जो है वो कैसे इजीली मूव कर सकता है इंडिया और रशिया के बीच में, ठीक है। एक तो ये वाला एग्रीमेंट मेनली है, ठीक है। और दूसरा एग्रीमेंट जो है वो है रशियन एनर्जी कैसे हम इजीली परचेज कर सकेंगे, रशियन एनर्जी सोर्सेज। ऑयल के ऊपर तो आपको पता ही है ट्रंप ने पनिटिव टैरिफ्स लगा रखे कि रशिया से हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसलिए 25% एक्स्ट्रा पनिटिव टैरिफ्स लगा रखे, लेकिन स्टिल वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन विद रशिया। हाउ इट विल इंपैक्ट इंडिया यूएस रिलेशंस, दैट नीड्स टू बी सीन, ठीक है। और उसके बाद हमने दूसरा एग्रीमेंट जो है वो हमने ये किया है कि डोमेस्टिक करेंसी ट्रेड जो है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है। डोमेस्टिक करेंसी ट्रेड मींस
हम रुपी के फॉर्म में भी ट्रेड कर सके, ठीक है। इट विल हेल्प टू रिड्यूस द डोमिनेंस ऑफ डॉलर इन द ट्रेड, और उससे हमारे डेफिसिट जो है वो ज्यादातर जो है कंट्रोल हो पाएंगे, ठीक है। और हम चाहते हैं, अब हमारा टारगेट भी है कि हमारा जो है रुपी जो है वो क्या हो जाए, इंटरनेशनलाइज। तो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी के लिए हम एफर्ट्स लगा रहे हैं, और ये एक राइट डायरेक्शन में स्टेप है। ऑलरेडी हम रशिया का बिल जो है वो रुपी के फॉर्म में पे कर पाते हैं, ठीक है। अब 100 बिलियन डॉलर ट्रेड जो है वो हम क्या करते हैं, अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा ओवर एम्बिशियस भी लगता है, लेकिन रशियन काउंटर पार्ट भी क्या कहते हैं कि हम ये अचीव भी कर सकते हैं, उतना डिफिकल्टी इसमें नहीं है। सो दिस इज ऑल फॉर यू फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर। थैंक यू सो मच, स्टडी वेल टिल वी मीट अगेन। थैंक यू।